skin specialist is in true sense is a dermatologist. People they still don't know skin के disorders के लिए किसके पास जाना है, hair के disorders के लिए किसके पास जाना है. Summers में जो issues आते हैं that are related to dull and tan skin. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाखु रेखा भट्टाचार्य. एक बार फिर से हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड को लेकर. डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये ऐसे पर्याय हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो हम आजकल अमूमन सुनते ही हैं. लेकिन डर्मेटोलॉजी की परिभाषा क्या है एंड व्हाई एवरीवन वुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजी, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना. और इसके लिए इस पूरे टॉपिक पर, इस पूरे सब्जेक्ट पर सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा. हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? Hello, I'm good. How are you? Very well. So she is a dermatologist doctor and you've been practicing for the last 10 years, I believe. Right. 10 साल बहुत होते हैं. तो डॉक्टर, मुझे ये समझना है कि डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? What is the meaning of this particular topic? So dermatology is the science of skin, but it's not just limited to skin. It's more of skin and everything related to skin, which also includes your hair, your Okay. nails, appendages, which means your oil glands, your sweat glands. Also, nowadays the science of skin has extended to more of internal well-being. True. Why? Because skin is a mirror of your internal health. So ये कुछ important aspects हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए. When we say that you need to consult not only a skin specialist, you have to consult a dermatologist. So why it has been said? ऐसा क्यों कहा जाता है? So actually, a skin specialist is, in true sense, is a dermatologist. अच्छा, okay. Right. So दोनों चीज़ें एक ही हैं. Yeah. So in more generically, we say skin specialist, but a true skin specialist is nobody else but a dermatologist, right? Okay. So many people they still don't know skin के disorders के लिए किसके पास जाना है, hair के disorders के लिए किसके पास जाना है. They most often go to salon people. Right. India में unfortunately aestheticians or cosmetologists, So anybody who can, have that 2 to 4 weeks of diploma can call themselves cosmetologists here in India, and nobody would question. But ideally, a dermatologist who has done MBBS followed by MD, a couple of specialization, is your true skin specialist. ये अब आपको जान लेने की ज़रूरत है कि ब्यूटी सर्जन या फिर कहें हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिकली जो क्लिनिक्स हैं, वो अगर आप उनको देखते हैं, उनके पास जाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. वो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपकी स्किन या हेयर रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए. नाउ कमिंग टू द इश्यूज़, लाइक आई सेड, सो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में डॉक्टर सबसे क्या नज़र आता है? So हम स्किन इश्यूज को एज वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं और कंसर्न वाइज कैटेगराइज कर Okay. सकते हैं. मेरी प्रैक्टिस में मोस्ट ऑफन समर्स में जो इश्यूज आते हैं दैट आर रिलेटेड टू डल एंड टैन स्किन, Yes, right? very true. Uneven skin. Yes. Winters में there is more of dry, chapped skin. Hair fall is a, I would say, perennial issue, but For everyone. yeah, it picks up in the monsoon, so it changes. Your skin and your hair concerns also vary from season to season and weather and environment. ओके, सो नाउ डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि समर रिलेटेड भी इश्यूज होती हैं, विंटर रिलेटेड इश्यूज. नाउ इट्स ऑब्वियसली समर, सो हम समर की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा इश्यूज आज के समय में किस एज से डर्मेटोलॉजिस्ट को हम कंसल्ट कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा उनको कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? See, I would say हर एज के अपने स्किन कंसर्न्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन एज ग्रुप who comes to me or any dermatologist is anywhere from late 20s to 40s. Okay. They come with a different concern. Most often, if I have to give you a very narrow bar, 30s to 40s is the age group, most common age group that we come across. What is the problem which they generally come up? Dry skin, dull skin, uneven skin tone, persistent tanning. So what happens is after a certain age, your skin metabolism goes down. Yes. तो आपका skin recover कम करता है. So you see that whatever tanning and pigmentation happens, it fails to just resolve by its own. तो तब आपको ज़रूरत पड़ती है डर्मेटोलॉजिस्ट की, जहाँ पे आप आएँ और वो आपके स्किन को एक इवन फंक्शन, एक इवन लेयर ज़रूर दें. Right. तो इसके लिए अगर ये तो बात हुई इश्यूज़ की, और आपको पता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ आप किस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं? क्या वो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं जैसे कि आप दवाइयाँ खाते रहें, या फिर कोई क्लिनिकल आपकी सेशंस होते हैं विच वी हैव टू गो थ्रू?
सो व्हेन वी प्लान अ ट्रीटमेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आपको जो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है, जो Okay. फैक्टर्स उसको अवॉइड करना है. होम केयर, देयर आर सम प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिकेशंस जो घर पे लगाने के लिए होती हैं, जो आपको Okay. रोज़ लगानी होती है फॉर अ बेयर मिनिमम टाइम ऑफ 6 to 8 वीक्स, 2 महीना 3 महीना. और ज़िद्दी टैन या ज़िद्दी पिगमेंटेशन या ऐसी पिगमेंटेशन जो नीचे की लेयर्स जिसको हम कहते हैं डर्मल लेयर्स में होती है, जो कि जहाँ पे क्रीम्स और मोस्ट ऑफन होम रेमेडीज एंड ऑल ऑफ दैट फेल टू पेनिट्रेट, वहाँ हम लेज़र्स, एक्सफोलिएशन, पॉलिशिंग्स, कुछ ऐसी क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है इन अ मैटर ऑफ मंथ to 2 month. Okay. That is not repeated that frequently, but कई बार उनके बिना आपका आउटकम कंप्लीट नहीं होता. So it's a very holistic approach that works the best. Okay. With the season, what are the recommendation which you will give? आपके हिसाब से क्या वो do's and don'ts हैं जो हर एज ग्रुप, जैसे कि आपने कहा ही है, जो मेजरली आता है 20 to 40 का है, जो उनको जहन में रखना चाहिए? So while we talk of pigmentation, tanning, Indian skin is known to tan. जैसे हम गोरी स्किन या कोकेशियन स्किन की बात करते हैं, वहाँ पे स्किन बर्न्स ज़्यादा होते हैं. दे डोंट टैन दैट ऑफन. व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन स्किन, हमारी स्किन इज प्रीडिस्पोज टू गेट टैनिंग. Okay. सो द फर्स्ट एंड फंडामेंटल की फैक्टर इज आप सन प्रोटेक्शन फॉलो कीजिए. सन प्रोटेक्शन का मतलब है एक एडिक्वेट मेडिकल ग्रेड सनस्क्रीन लगाइए, उसको रिपीट कीजिए, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी. Okay. Right? And then if you have tan, then maybe avoidance of further sun exposure, some bare minimum home care and a couple of treatments. Couple of treatments से कितने, मतलब it's the regular facial जो हम लोग generally लेते हैं? See, facials work on a very Superficial superficial, level. shallower level. That is something which works when you are looking for a maintenance. Yes. लेज़र्स आर वेरी प्रिसाइज. लेज़र की पेनिट्रेशन एक डॉक्टर कंट्रोल कर सकता है बेस्ड ऑन कहाँ पे उसको काम करना है. लेज़र्स आर ट्रीटमेंट्स विच वर्क ऑन रिमूविंग द टैन फ्रॉम इनसाइड. Peels are one such treatments. They are not repeated that often. Once in 3 weeks, once in a month is good enough. यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप फेशियल करवाएंगे हर महीने जाके और आपकी त्वचा बिल्कुल निखरी नजर आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. दैट्स अ सुपरफिशियल लेवल. फॉर दैट, अगर आपको किसी भी तरह की पिगमेंटेशंस हो रही है, या फिर जो टीनेजर्स से मेरे ख्याल से लेकर कॉलेज गोअर्स 20 to 25 और जो ऑफिस गोअर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा आता है आई थिंक दी पिम्पल्स Yes. एंड Yes. ब्लैकहेड्स एंड एक्नेज. right. वो एक एज ग्रुप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, और बोथ मेल एंड फीमेल आई बिलीव. Right. तो वहाँ पे आपको स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. राइट डॉक्टर? Right, true. सो नाउ हेयर भी अगर हम बात करें, तो अगर आपका हेयर फॉल हो भी रहा है, तो प्लीज डू नॉट उसको एस्केप मत कीजिए. देन अगेन यू हैव टू Visit the dermatologist. ये मुझे नहीं मालूम था कि इसके आपके हेयर के लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी. So dermatology में hair, nail, lasers, hair transplant, body, ये सारा these are subspecialties जो एक dermatologist treat करते हैं. ये concerns काफ़ी commonly हमें पता नहीं होता. Trichologist is something. So trichology is the science of hair, but again it's a subspecialty and subdomain of dermatology. ओके. सो यानी कि आज के एपिसोड में हमने जाना कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है और डर्मेटोलॉजिकल आपके लिए इफेक्टिव क्या वो रेमेडीज हो सकती हैं, और आप कब डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं. आने वाले एपिसोड्स में वी विल बी टचिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ डर्मेटोलॉजी. राइट डॉक्टर? Right. एंड आई एम श्योर आपको भी जानना होगा कि हाँ, कि डर्मेटोलॉजी के अंडर में क्या क्या वो लेयर्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, और आप अपनी ज़्यादा जितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको लेकर डॉक्टर के पास आ सकते हैं. Right. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका फॉर Thank you. My pleasure. प्लेजर इज आर डेफिनेटली. क्योंकि वाकई में आज की जिंदगी में हम लोग सब जानते हैं कि डिग्रीज हैं, सब कुछ है, ब्यूटी का मतलब ही है वेलनेस, लेकिन वेलनेस इटसेल्फ हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. यू नीड टू हिट द राइट बॉल. True. वेल, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही. आई एम श्योर डर्मेटोलॉजिस्ट टर्मिनोलॉजी से आप अब जरूर वाकिफ्ता हो चुके होंगे. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, या फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट से ही जुड़े ऐसे तमाम क्वेश्चंस और क्वेरीज लेकर आएंगे जो आप हम तक भी पहुंचाएंगे. वेल, आज के लिए फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. होती है आपसे मुलाकात. नमस्कार.